بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. خوش آمدید MCQs پلانٹ آفیشیل میں دی ہوم آف کرنٹ افیئرس. اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ اپریل 2022 کے تیسرے ہفتے کے 20 سے زائد اہم ترین پاکستان اور انٹرنیشنل کرنٹ افیئرس شیئر کریں گے. اس ویڈیو میں جتنے بھی کرنٹ افیئرس آپ کے ساتھ شیئر کیے گئے ہیں وہ سب ہماری ویب سائٹ MCQsplanet.com پر اویلیبل ہیں. Who is the current foreign minister of Pakistan? کون ہے موجودہ وزیر خارجہ پاکستان کے؟ ان گیون آپشن میں سے آپشن سی بلاول بھٹو زرداری. جب تک بلاول بھٹو زرداری کی اسائنمنٹ نہیں ہو جاتی سو ہنا ربانی کر جو کہ اسٹیٹ منسٹر ہے فار فورن افیئرز آف پاکستان وہ فورن منسٹری کو سنبھال رہی ہے. لیکن جیسے ہی کسی فیڈرل منسٹر یعنی کہ بلاول بھٹو زرداری اپنے عہدے کو سنبھال لیتے ہیں، ان کا چارج سنبھالتے ہیں، تو جو اسٹیٹ منسٹر کا رینک ہے وہ ڈپٹی کا رینک ہے، وہ سیکنڈ ہائیسٹ رینک ہے. یعنی کہ اسٹیٹ منسٹر آف فورن افیئرز وہ فورن منسٹر کو رپورٹ کرے گا اور فورن منسٹر پرائم منسٹر آف پاکستان کو رپورٹ کرے گا. سو بلاول بھٹو زرداری انہوں نے ابھی اوتھ نہیں لیا، لیکن یہ نیوز ریویلڈ ہو چکی ہے جب انہوں نے نواز شریف سے ملاقات کی. کچھ کنڈیشنز یا کچھ ڈیڈ لاکس کی وجہ سے انہوں نے اوتھ نہیں لیا، لیکن اب بلاول بھٹو زرداری نیو فورن منسٹر ہوں گے پاکستان کے. What is the theme of the Earth Day in 2022? Earth Day 2022 کا کیا تھیم رہا؟ گیون آپشن میں سے آپشن بھی انویسٹ ان اور پلانٹ. ہر سال اپریل 2022 کو ارتھ ڈے کو آبزرو کیا جاتا ہے ٹو سپورٹ فار انوائرمنٹل پروٹیکشن. پہلی بار ارتھ ڈے کو 22 اپریل 1970 میں آبزرو کیا گیا تھا اور سال 2022 کے لیے اس کا تھیم ہے انویسٹ ان اور پلانٹ. نیپٹیون میزائل سسٹم از ایسوسیٹڈ ود وچ کنٹری؟ نیپٹیون میزائل سسٹم یہ کس ملک کے ساتھ منسلک ہے؟ گیون آپشن میں سے آپشن سی یوکرین. نیپٹیون میزائل سسٹم یوکرین کے ساتھ منسلک ہے، یعنی کہ یہ یوکرینین فورسز کا حصہ ہے سال 2021 سے، اور اس کی جو رینج ہے وہ 300 کلومیٹر ہے. نیپٹیون میزائل سسٹم کو ہم نے اس کرنٹ افیئرس کا حصہ کیوں بنایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رشین بلیک سی فلیٹ ماسکوا یعنی کہ رشیا کی جو بحری بیڑا ہے جو کہ رشین بلیک سی میں وہ پیٹرولنگ کرتا ہے، اس کو ابھی حال ہی میں نیپٹیون میزائل سسٹم سے ہٹ کیا گیا ہے. رشیا یہ کلیمڈ کر رہا ہے کہ یہ آن بورڈ ایمونیشن فائر کی وجہ سے اس بحری بیڑے میں بلاسٹ ہوا ہے، لیکن یوکرین یہ کلیم کر رہا ہے کہ یہ پلانڈ سٹرائک تھا جو انہوں نے نیپٹیون اینٹی شپ کروز میزائل کے ذریعے رشین بلیک سی فلیٹ ماسکوا پر کیا. پاکستان ریلویز on 21 اپریل 2022 لانچ تل ایکسپریس which will operate between. پاکستان کی ریلویز نے 21 اپریل 2022 کو تل ایکسپریس کا افتتاح کیا جو کہ آپریٹ کرے گا کن دو شہروں کے درمیان؟ ان گیون آپشن میں سے آپشن بھی راول پنڈی اینڈ ملتان کے درمیان یہ آپریٹ کرے گا. تل ایکسپریس میں 700 پیسنجرز کو لے جانے کی کیپیبلٹی ہے اور اس میں 7 کوچز ہے فار دا اکانومی کلاس کے لیے. کینیا فارمر پریزیڈنٹ میوائی کباکی ڈائیڈ آن ڈیش ایٹ دا ایج آف 90. کینیا کے فارمر پریزیڈنٹ جن کا نام میوائی کباکی تھا، ان کی کب موت واقع ہوئی؟ اور ان کی موت ایٹ دا ایج آف 90s میں واقع ہوئی. گیون آپشن میں سے آپشن ڈی 21 اپریل 2022 کو ان کی موت واقع ہوئی. وہ 3rd پریزیڈنٹ تھے کینیا کے دسمبر 2002 سے لے کر اپریل 2013 تک. وین یونائٹڈ اسٹیٹس کانگریس وومن الہان عبداللہی عمر ارائیوڈ ان پاکستان. کب یونائٹڈ اسٹیٹس کی کانگریس سے تعلق رکھنے والی وومن یعنی کہ وہ ان کے کانگریس کا حصہ ہے الہان عبداللہی عمر وہ پاکستان پہنچی؟ ان کی ان آپشن میں سے آپشن اے اپریل 2022 کو وہ پاکستان پہنچی. وہ 4 ڈے وزٹ پر آئی ہے پاکستان اور ان کے یہ وزٹ شروع ہوگا 20 اپریل سے اور ختم ہوگا 24 اپریل کو. اور انہوں نے اپنی اس وزٹ میں پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ ملاقاتیں کرنی ہے، جس میں انہوں نے شہباز شریف کے ساتھ ملاقات کی، عمران خان کے ساتھ بھی انہوں نے ملاقات کی، اور وہ وزٹ کرے گی لاہور کا اور ساتھ ہی ساتھ آزاد جموں اینڈ کشمیر کا to have greater understanding of Pakistan cultural, social, political and economic potential. Russia RS-28 Sarmat intercontinental ballistic missile made its first test flight on. اس سے ریلیٹڈ ایسا کرنٹ افیئر آ سکتا ہے کہ RS سرمت کس ملک کا انٹرکانٹیننٹل بیلسٹک میزائل ہے؟ سو سرمت سے ریلیٹڈ یہ آ سکتا ہے. سو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ رشیا کا انٹرکانٹیننٹل بیلسٹک میزائل ہے. یہ اس کا فرسٹ ٹیسٹ فلائٹ کب ہوا؟ ان گیون آپشن میں سے آپشن بی 20 اپریل 2022 کو رشیا RS-28 سرمت جو کہ انٹرکانٹیننٹل بیلسٹک میزائل ہے اور اسے ویسٹ میں سیتان 2 کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ رشین لیکوڈ فیولڈ MIRV equipped سپر ہیوی انٹرکانٹیننٹل بیلسٹک میزائل ہے.
इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का शॉर्ट फॉर्म ICBM है और ये मिसाइल रिप्लेस करेगा R-36M ICBM यानी कि SS-18 सैतान को इन रशियन अर्सेनल. The Sarmat is one of the 6 new Russian strategic weapons unveiled by Russian President Vladimir Putin on 1 March 2018. ये उन 6 रशियन स्ट्रेटेजिक वेपन्स में शामिल है जिसके बारे में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने 1 मार्च 2018 को बताया था. सो सरमद भी उनका हिस्सा है और इसका फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट 20 अप्रैल 2022 को किया गया और इसी साल में 2022 में इसको सर्विस में भी इंक्लूड कर दिया जाएगा यानी कि रशियन सर्विस में ये एक्टिव हो जाएगा. हु इज द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो. कौन है मौजूदा DGIB के. इन गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन सी फौद असदुल्ला खान. फेडरल गवर्नमेंट ने 20 अप्रैल 2022 को फौद असदुल्ला खान को एक्टिंग DG ऑफ IB मुकर्रर किया. हु इज द करंट डिप्टी स्पीकर पाकिस्तान नेशनल असम्बली. कौन है मौजूदा डिप्टी स्पीकर पाकिस्तान नेशनल असम्बली के. ऑप्शन सी जाहिद अकरम दौरानी. न्यू डिप्टी स्पीकर है पाकिस्तान नेशनल असम्बली के. वो नेशनल असम्बली के मेंबर है अक्टूबर 2018 से और वो 20वें डिप्टी स्पीकर हैं फ्रॉम 21 अप्रैल 2020 सेकेंड से नेशनल असम्बली के. पाकिस्तान नेवी शिप शमशीर ऑन अप्रैल 2022 विजिटेड पोर्ट मिना सलमान लोकेटेड इन. यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट पोर्ट मिना सलमान है. ये कहाँ पर वाक़ई है क्योंकि पाकिस्तान की नेवी शिप शमशीर ने इसका 20 अप्रैल 2022 को विज़िट किया है. सो ये पोर्ट मिना सलमान के बारे में आ सकते हैं. सो इन गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन बी बहरीन. पोर्ट मिना सलमान बहरीन में वाक़ है. इन अप्रैल 2022 चाइना साइन ए सिक्योरिटी पैक्ट विद द. अप्रैल 2022 में चाइना ने किस मुल्क के साथ सिक्योरिटी पैक्ट पर साइन किया. इन गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन डी सोलोमन आइलैंड. चाइना ने 19 अप्रैल 2022 को इसके बारे में बताया और सोलोमन आइलैंड की जानिब से यानी कि उनके जो ऑफिशियल्स थे उनकी जानिब से 20 अप्रैल 2022 को इसकी तस्दीक की. सो चाइना ने सोलोमन आइलैंड जो कि कंट्री है ओशियाना में उनके साथ सिक्योरिटी पैक्ट साइन किया है. और ये जो टेंशन्स है बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड एलाइज ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दरमियान ये ग्रो कर रही है क्योंकि चाइना का इन्फ्लुएंस है वो उनके रीजन्स तक जा पहुंचेगा. सोलोमन आइलैंड जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ ही वाक़िया है. सोलोमन आइलैंड के प्राइम मिनिस्टर मनासी सोगावेरी है और सोलोमन आइलैंड का कैपिटल होनाइरा है. आपको यहाँ पर इस मैप के थ्रू शो रहा होगा ये सोलोमन सी है और ये सोलोमन आइलैंड है. सोलोमन आइलैंड 6 छोटे छोटे जो आइलैंड हैं उनको मिलाकर बना है और सोलोमन आइलैंड के साथ ऑस्ट्रेलिया है और इसके इस साइड पर न्यूजीलैंड है. सो अगर यहाँ पर चाइनीज़ प्रेजेंस होती है तो इन दोनों कंट्रीज़ के लिए ये बहुत बड़ा ख़तरा है और इसी वजह से ये दोनों कंट्रीज़ इस पैक्ट से डर रही है और साथ साथ यूनाइटेड स्टेट्स भी इस पैक्ट से उनको हिचकिचाहट है कि क्यों सोलोमन आइलैंड जो है वो पीस को ख़राब कर रहा है. इन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2022 the IMF projected India's average rate of inflation for the current year against 8.9% last year. वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2022 में IMF ने पाकिस्तान की करंट ईयर यानी कि साल 2022 के लिए कितने इन्फ्लेशन को यानी कि कितनी महंगाई को उन्होंने इस्टीमेटेड किए थे, उसकी एवरेज रेट को कितना बताया था कि पाकिस्तान में साल 2022 के लिए कितनी % महंगाई होगी, जो कि लास्ट ईयर थी 8.9% यानी कि साल 2021 के लिए वो कितनी थी 8.9%. इन गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन सी 11.2% जो कि IMF ने प्रोजेक्टेड किए थे कि ये एवरेज रेट ऑफ इन्फ्लेशन होगी फॉर द ईयर 2022 और 7% अनएम्प्लॉयमेंट रेट होगा जो कि स्लाइटली लोअर देन है 7.4% of the last year. The International Monetary Fund (IMF) on April 19, 2022 forecast Pakistan economic growth rate at. पाकिस्तान की economic growth rate currently क्या है? According to International Monetary Fund on April 19, 2022 उन्होंने पाकिस्तान की growth rate को forecast किया. यानी कि ऑप्शन में से ऑप्शन बी 4% पाकिस्तान की ग्रोथ रेट है जिसके बारे में IMF ने 19 अप्रैल 2022 को बताया जो कि हायर देन है एस्टिमेटेड इन्फ्लेशन एंड करंट अकाउंट डेफिसिट. और साथ ही साथ जो मज़ीद डेवलपमेंट लैंडर्स हैं लाइक वर्ल्ड बैंक उन्होंने भी पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है फॉर द ईयर 2021 यानी कि करंट फिस्कल ईयर उसमें 4.3% उसको एस्टिमेट किया था. एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 4% और मोदी ने 3 to 4% उसको एस्टिमेटेड किया था जो कि लोअर देन है बट सिग्निफिकेंटली लोअर देन है 4.8% टारगेट सेट इन द बजट 2021 to 2022. लेकिन पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक बजट था उसमें इस टारगेट को यानी कि पाकिस्तान इकोनॉमिक ग्रोथ को
4.8% टारगेट इसका सेट किया गया था, जो कि अभी तक पाकिस्तान ने अचीव नहीं किया। हुई द करंट एक्टिंग गवर्नर ऑफ सिंध, कौन है मौजूदा एक्टिंग गवर्नर ऑफ सिंध? इन गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन ए आगा सिराज दुरानी, जो कि स्पीकर भी है सिंध असेंबली के। हुई द करंट चीफ सेक्रेटरी ऑफ बलूचिस्तान, कौन है मौजूदा चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान के? इन गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन डी अब्दुल अजीज़ अकीली, अब्दुल अजीज़ अकीली ने मतर नियाज राना को रिप्लेस किया है। अब्दुल अजीज़ अकीली BS-21 ऑफिसर है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी कि PMS से, और उनकी अपॉइंटमेंट का नोटिफिकेशन एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न की जानिब से 20 अप्रैल 2022 को इशू किया गया। हुई द करंट सेक्रेटरी नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, कौन है मौजूदा सेक्रेटरी नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान के? इन गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन सी ताहिर हुसैन। विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू अनाउंस अ बैन ऑन मिसाइल टेस्ट अगेंस्ट स्पेस सैटेलाइट, दुनिया की पहली कंट्री जिसने अनाउंसमेंट की है कि वो जितने भी स्पेस सैटेलाइट्स हैं उनके खिलाफ मिसाइल टेस्ट नहीं करेगी। इन गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ये अनाउंसमेंट की है। इसके बारे में यूनाइटेड स्टेट्स की वाइस प्रेसिडेंट कैमला हैरिस ने बताया, और यूनाइटेड स्टेट्स के अलावा चाइना, रशिया और इंडिया ऐसे ममालिक हैं जो कि सच टेस्ट परफॉर्म करते हैं, और इन टेस्ट को परफॉर्म करने की वजह से स्पेस में स्पेस डिब्रिस यानी कि वो स्पेस का गंद जो है वो इन सैटेलाइट्स को तबाह करने से वो गंद जो है वो स्पेस में फैल जाता है, जिसकी वजह से मज़ीद स्पेस स्टेशन में मुश्किलात का सामना होता है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च इट्स ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इन, WHO ने ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन यानी कि GCTM को कहाँ पर लॉन्च किया है, यानी कि कहाँ पर खोला है? इन गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन ए इंडिया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जमनगर के मकाम पर 19 अप्रैल 2022 को ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का इफ्तिताह किया, और इसके थ्रू अनलॉकिंग इट्स पोटेंशियल बाय ब्लेंडिंग एंशिएंट प्रैक्टिसेस विद मॉडर्न साइंस। इसका मकसद ये होगा कि जो एंशिएंट प्रैक्टिसेस है उसको मॉडर्न साइंस के साथ मिलाकर न्यू पोटेंशियल्स को अनलॉक किया जाए। हुई द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, कौन है मौजूदा वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के? गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन बी सरदार तनवीर इलियास। सरदार तनवीर इलियास 18 अप्रैल 2022 को अनअपोज्ड इलेक्ट हुए आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के 14th प्राइम मिनिस्टर। करंट स्पीकर ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के अनवरुल हक है। तनवीर इलियास ने 33 वोट्स हासिल की, 20 अपोजिशन मेंबर्स ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के प्रेसिडेंट बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने उनका ओथ लिया। An anti-terrorism court on April 17, 2022 handed down the death sentence to Daesh men in the Prianta lynching case. पाकिस्तान की एंटी टेररिज्म कोर्ट ने 17 अप्रैल 2022 को कितने लोगों को सजाए मौत सुनाई प्रियंता लीचिंग केस में? गिवन ऑप्शन द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी 6 men को पाकिस्तान के एंटी टेररिज्म कोर्ट ने 17 अप्रैल 2022 को सजाए मौत सुनाई, जिसमें से 9 को लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि कैद की सज़ा सुनाई गई, उम्र भर कैद की सज़ा सुनाई गई। 5 year to 1 यानी कि एक शख्स को 5 साल की सज़ा और 2 years जेल टर्म ईच एज मैनी यानी कि 72 persons को 2 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई है फॉर इन्वॉल्वमेंट इन लीचिंग ऑफ श्रीलंकन फैक्ट्री मैनेजर इन सियालकोट ओवर ब्लास्फेमी एलिगेशंस। आप इसके बारे में विकिपीडिया में पढ़ सकते हो, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो शख्स था उसका नाम था प्रियंता कुमारा, जिसको ब्लास्फेमी यानी कि लोगों ने एलिगेशन लगाई थी कि उन्होंने गुस्ताखे रसूल किए हैं, उनके खिलाफ उन्होंने बातें की, लेकिन हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने पोस्टर्स यानी कि कुछ हाई ऑफिशियल्स विजिट करने वाले थे उस फैक्ट्री में से, उन्होंने कहा कि इस पोस्टर्स को हटा दे, लेकिन हमारे लोग जाहिलियत की वजह से उन्होंने इसको बेदर्दी से कत्ल किया। सो आप इस केस को विकिपीडिया में या गूगल में सर्च करके मज़ीद डिटेल में पढ़ सकते हैं। और जो इस केस का जो फैसला किया वो गुजरावाली की ATC नताशा नसीम ने किया, जो कि प्रिजाइडिंग जज थी एंटी टेररिज्म कोर्ट की।